Hello guys. We at Socio Legal Literary come up with this idea of judgment simplified, and today we are going to talk about the case of Shaheen Bagh, the Shaheen Bagh judgment that recently Supreme Court delivered. I am the founder of Socio Legal Literary Rajesh, and me with my colleague Soumya Singh. She is the media head. Also, she is an editorial in charge of Socio Legal Literary. So we both would talk about the issues and the repercussions of judgment surrounding Shaheen Bagh. And Soumya would briefly talk about the facts of the case, and then we together would discuss the judgment and its larger perspective. Soumya. Okay, so thank you, Rajesh. So first, with the judgment, I would like to, brief about the separation of power. So we all know that separation of power is a political doctrine that was first originated in the writing of Montesquieu in the book known as The Spirit of the Laws. According to this separation of power, the three institutions, that is the judiciary, the legislature, as well as the executive, they have well-defined powers so that they can maintain a check and balance upon each other. So according to this principle only, we all know that legislature is there to legislate laws, and as per that only, legislature enacted Citizenship Amendment Act 2019. Now, there was a section of society who were aggrieved by this particular legislative amendment, and they filed petition under Article 32, assailing the constitutionality and legality of this amendment. Now, what happened when the matter came up before the court? So this petition was dismissed, and the High Court stated that the respondent to look into grievances and to keep in mind the larger public interest. Now, later again, a FLP was filed against this judgment before the Supreme Court, and then when the matter went before the Supreme Court, the court appointed two interlocutors to look into the matter and to take a out of court settlement. Now, in I the think report, Sanjay the Hegde report and submitted. sorry to interrupt, Soumya. I think Sanjay Hegde and Sadhana Ramchandra was the interlocutor, right? Exactly. These two people were the interlocutors. Now, they submitted a report in which it was mentioned that even after the COVID outbreak, there were 35 to 40 tucks were found in the tent, and each tuck had 2 to 3 women. That overall, there were 75 to 100 women inside the tent. And now, there were 200 to 300 male outside the tent who were blocking this Shaheen Bagh, Okhla underpass. Okhla underpass. Okay. Now, the person who were opposing this Citizenship Amendment Act and National Register of Citizens, they adopted a method of protest which resulted in the closure of Khalidi Kund, Shaheen Bagh stretch, as well as Okhla underpass. Now, as I've already stated, that there were reports which showed that 75 to 100 women were there sitting in the tent even after the deadly coronavirus outbreak, and 200 to 300 males were outside the tent. Now, since I have told you about the brief facts, Rajesh will deal with the arguments. So, the court has primarily two important aspects. That one, I think court went to do the, first of all, there is one thing that we would like to bring to your notice, that the time when court was pronouncing the judgment, the file or the petition has become infructuous. The reason is that the protest has all been called off by the protesters, and so we believe that the court should not pronounce the judgment or not went to the matters that uh, and that was an unnecessary attempt. So protest वापस कर लिया गया था, और लोग कोविड की वजह से चूंकि प्रोटेस्ट जब वापस हो गया था, तो कोर्ट को ये करने की जरूरत नहीं थी कि वो जजमेंट दे. अब दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये आता है, जिसको बैकग्राउंड को सौम्या ने डील किया. पिटिशनर ये कहता है कि नहीं, आपको जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम टू प्रोटेस्ट है, वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में है, और उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे राइट टू कम्यूटर्स. लेकिन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो कहते हैं नहीं, वो कुछ केसेस पे भी रिलाई करते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के लिंक में दे देंगे. और वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है इस पे
नहीं कह सकते कि आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो अब्स्ट्रैक्ट राइट है, इसको आपको राइट टू कम्यूटर से बैलेंस करना है। तो कोर्ट जो है इस आर्गुमेंट को मानती है, और कोर्ट फिर मजदूर किसान संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसको रेफर करती है, जहाँ पे कोर्ट कहती है कि प्रिंसिपल इज बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रेंडर्स एंड द एरिया इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेस्टर्स एज ए होल, एंड दैट डिस्कशंस एंड सेड दैट कि जो जंतर मंतर के राउंड का जो एरिया है उस जगह पे ही प्रोटेस्ट होगा, ये उस केस के पर्सपेक्टिव में कोर्ट कहती है और कोर्ट इस केस पे रिलाई करती है। सो अब इसका जो एनालिसिस है जजमेंट का वो मुझे ऐसा लगता है, लेटर सौम्या वुड टेक फॉरवर्ड इट, इज दैट कोर्ट हैज नैरोली डिफाइंड और कंस्टिट्यूट द राइट ऑफ प्रोटेस्ट। द रीजन इज दैट द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट इज टू मेक द स्टेट, जो राज्य है जो सरकार है उसको इनकन्वीनियंट करना, उसको असुविधा पहुंचाना। वो उस प्रोटेस्ट से अगर असुविधा नहीं महसूस कर रही है तो फिर उस प्रोटेस्ट का मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक अच्छा आर्गुमेंट आता है वो कहते हैं कि नहीं, जो कम्यूटर्स के राइट हैं, जो राइट ऑफ कम्यूटर्स है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, वो भी आपको उस पर्सपेक्टिव में, बैलेंसिंग ऑफ राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखना होगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ये नहीं बताती है कि डेजिग्नेटेड प्लेस कैसा होगा। तो स्टेट को एक जिसपे कहा जाता है कि एक सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड स्टेट को मिल गया जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को कंट्रोल करेगा। तो डेमोक्रेट जो एक आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक डीपली प्रॉब्लमेटिक आइडिया है जो पारा 18 है जजमेंट का, वो इस तरीके से स्टेट को एक इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट पावर दे रहा है कि वो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को कंट्रोल करे। वहीं कोर्ट ये मानने से इनकार कर देती है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसमें जो कोई कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन क्या होगा, उस पे कोर्ट कहती है कि हम उस पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रशासन के ऊपर है कि वो कैसे कंट्रोल करेगी, और कुछ चीजें कोर्ट रूम से डिक्टेट नहीं की जा सकती है। वी कैन नॉट डिक्टेट एवरीथिंग फ्रॉम द कोर्ट रूम। कुछ चीजें जो है सड़क पे और उस स्थिति को देख के प्रशासन काम कर सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कोर्ट करती है इस केस में। एक और चीज कहती है कोर्ट इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो गुड रियलिटी है और जो विजडम है पुलिस का, वो डिटरमाइन करेगा सिचुएशन को। हम सब ने देखा हाथरस के केस में पुलिस का विजडम क्या था, हम सब ने देखा कि अलग अलग केसेस में पुलिस का विजडम क्या होता है। तो एक रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत होता है जिसको हमने लाइव लॉ के एक सीरीज में, जो हमारा संविधान संवाद का सीरीज है, उस पर डिस्कस किया है कि रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत क्या होता है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि पुलिस को आप इतना पावर नहीं देंगे कि वो आपको कंट्रोल कर सके। तो आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट इस जजमेंट का है। और आगे सौम्या बताएंगी कि उनको क्या लगता है, क्यों लगता है कि ये जो शाहीन बाग का जजमेंट है वो एक प्रॉब्लमेटिक जजमेंट है। और साथ ही वो ये भी बताएंगी कि जैसा हमने डिस्कस किया कि कम्यूटर्स के राइट क्या हैं और उसको हम किस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही कहा राजेश आपने कि अगर हम सिटीजन के पास राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी जो एक लिबरलिज्म, क्योंकि हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हम रह रहे हैं, और लिबरलिज्म यही कहती है कि हमारे पास हर एक इंडिविजुअल के पास एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, जिसके पास राइट टू चूज है। तो अगर किसी आदमी के पास राइट टू डिसेंट है, तो किसी किसी और के पास राइट टू प्रोटेस्ट या फिर राइट टू एक्सेप्ट भी है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर किसी एक, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मेरी राइट सही है, मुझे अपनी राइट को बढ़ावा देना है, तो मैं किसी और की राइट, किसी और इंसान की राइट को अब्रिज या फिर इन्फ्रिंज नहीं कर सकती। बहुत अच्छे से कोर्ट ने, हाँ राजेश आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने राइट को प्रमोट करने के लिए, अपने राइट को असर्ट करने के लिए आप किसी दूसरे के राइट का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसको हम नहीं कर कहते हैं। सकते। जी सौम्या। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। तो कोर्ट ने वॉल्टर लिपमैन, जो कि पुलित्जर प्राइज विनर है, उनको भी कोट करते हुए बोला कि इन अ डेमोक्रेसी द अपोजिशन must be maintained because it is indispensable। हम जानते हैं कि ऑपोजिशन की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। अगर किसी, राजेश आप इस बात को कुछ
मेरी बात से सहमति रखते हैं या असहमत है तो आप मुझे टोक सकते हैं। नहीं नहीं, मैं इस बात को इस तौर पे भी देखता हूँ सौम्या कि जो आपने कही, जो अपोजिशन कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखिए कि कोर्ट, ये डिकोटोमी क्या है जजमेंट का, कि कोर्ट ये मानती तो है कि अपोजिशन है, और जब एक समूह, एक महिलाओं का एक समूह या एक नागरिकों का एक समूह अपोजिशन के लिए आती है, तो कोर्ट ये मानने से इनकार कर देती है कि इन अपोजिशंस के समूहों को आप जो है एक डेजिग्नेटेड प्लेस देंगे। तो आप समझिए कि इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि एक लोकतंत्र में जो विपक्ष है वो सिर्फ पॉलिटिकल विपक्ष नहीं होता है, इसको हम पॉलिटिकल अपोजिशन कहते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पॉलिटिकल अपोजिशन भी नहीं है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी वो एक डिफैक्टो नेता हैं, डिजेरियो नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की इतनी सीट नहीं है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बन सके। तो मुझे लगता है कि एक जो आपने कहा कि कोर्ट ने तो बहुत ये बहुत फ्लावरी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लावरी लाइन है जिसको कोर्ट ने कोट किया, लेकिन कोर्ट ये मानती, ये इसको धरातल पे लाने के लिए कोर्ट ने कोर्ट का जो जजमेंट है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। बिल्कुल राजेश, एक वर्ड है ऑक्सीमोरॉनिक, या फिर हम इसको जक्सटापोजिशन भी कह सकते हैं कि एक तरफ जज कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, और उसी तरफ दूसरी तरफ कोर्ट ने ये बोला है कि देयर हैज टू बी अ डेजिग्नेटेड प्लेस वेयर पीपल कैन असेंबल एंड दे कैन प्रोटेस्ट। वेयरएज कोर्ट ने आपने बताया है कि कहीं भी डेजिग्नेटेड प्लेस क्या हो सकती है हमें नहीं पता। क्या पता जो हमारे आउटस्कर्ट में कोर्ट ने बोल, एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी नॉट कोर्ट, अगर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, उन्होंने हमारे सिटी के आउटस्कर्ट में बोल दिया कि फाइन दिस इज द डेजिग्नेटेड प्लेस, देयर यू कैन गो एंड प्रोटेस्ट, तो हमें राइट। हमारे जो पब्लिक चाहिए, जो चाहिए कि हाँ लोग हमें देखें, लोग हमारे मुद्दे को सुने, वो कहाँ से मिलेंगे? तो एक तरीके से जो डिसेंट की बात है, जैसे कि हम जानते हैं हमेशा पिछले कुछ सालों में जैसे प्रेस को दबाया जा रहा है, अब इंडिविजुअल्स को दबाया जा रहा है, हमारी वॉइस को दबाया जा रहा है, तो कितना ज्यादा उल्लंघन है आर्टिकल 19(1)(a) का। वो दो ये जजमेंट कुछ और ही कह रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ना, देयर इज एन टर्म इन टॉर्ट लॉ, डिफेमेशन में कहते हैं इनुएंडो, देयर इज अ टर्म इनुएंडो इन डिफेमेशन इन टॉर्ट लॉ, जो कहता है कि हिडन मीनिंग। तो इस तरीके से जजमेंट, अरे दो इसको ऐसे जजमेंट बोल रहे समझिए हैं कि एक कहावत है सौम्या, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और कुछ खाने और। के कुछ और। तो ये वाली बिल्कुल। बात है। और ये जजमेंट इस तरीके से जो, और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम दोनों ब्रिंग करना चाहेंगे यहाँ पे, कि कोर्ट ये कहती है कि कॉलोनियल रूल के समय जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो अलग था, और अभी जो है उसको हमें सेल्फ रूल डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हमें और रेस्ट्रिक्टिव करके देखना पड़ेगा। तो आप समझिए कि एक लिबरल देश में, एक आजाद देश में, और एक ऐसा देश जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेरेंस, हम सब मानते हैं कि हमारा देश का संविधान बहुत पुराना संविधान है, बहुत बरसों से चला आ रहा है, जिसको प्रोफेसर टॉम जन्सबर्ग कहते हैं कि एक संविधान की औसत आयु 19 साल होती है, लेकिन हमारा संविधान हम सब जानते हैं 70 वर्षों से लगभग चल रहा है। वहां अगर एक कोर्ट, हमारा देश की सबसे सिर्फ न्यायालय, ये जजमेंट लेके आती है कि आपको कॉलोनियल रूल के समय जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो ऑफ कोर्स अलग है, हम उस समय इतने मुखर होकर बात नहीं कर सकते, लेकिन अब हम अपने मुखरता से बात तो कर सकते हैं कि हम हमें किस तरह का लोकतंत्र चाहिए, लोकतांत्रिक आंदोलन कैसे होने चाहिए, इन सब पे तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ये कह रही है आप बात तो कीजिए, आप लोकतांत्रिक आंदोलन भी कीजिए, लेकिन ऐसे जगह पे कीजिए जहाँ पे आपको राज्य चाहेगा। क्या हमें राज्य ये अधिकार देता है? कि हमें हमें तो ये अधिकार संविधान से मिलता है। तो ये बहुत वाजिब सवाल हैं जो बनते हैं कोर्ट से भी, और हमें इसको एकेडमिक के तौर पे भी देखना चाहिए कि ये कितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं, कि आपको राज्य कहेगा कि नहीं आप यहाँ पे अपने अधिकार एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इस जगह पे कर सकते हैं। जी सोमेन। कैसे लोगों की राइट्स को इन्फ्रिंज किया। हेलो। जी जी हाँ जी। तो जैसे जी। अगर हम ये बोलते हैं कि शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में कैसे ब्लॉकेड हुआ और कैसे लोगों को कितनी दिक्कतें हुई, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें जजमेंट उन लोगों के फेवर में है, जहाँ कोर्ट कहता है कि राइट, जी जी जो प्रोटेस्टर्स के राइट है और जो कम्यूनिस्ट के राइट है वो ब्लॉक कर दे रहे हो, आपने एक रोड ब्लॉक कर दी है, लोग
चलिए मान उस टाइम से चलो कोरोना इतना ज्यादा था कि बच्चे स्कूल बंद हो चुके थे, मगर अगर स्कूल चलता तो कितनी दिक्कतें होती है, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस। एंड हम जानते हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होता है तो कभी भी मैंने रेयरली ऐसा देखा होगा कि प्रोटेस्ट हुआ और एम्बुलेंस को लोग आराम से जाने दिए हैं। मैंने तो ऐसे कोई भी केसेस नहीं देखे आज तक। तो इस प्रोटेस्ट का जी जी। एक तरीके से हम जजमेंट को अगर इस वे में देखें तो ऑफकोर्स ये जजमेंट एक अच्छी सेटअप किया है कि हाँ, अगर आपको डिसेंट करना है, आपको प्रोटेस्ट करना, आप करिए, आराम से करिए, लेकिन इस एक पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। अगेन देयर इज वेरी सब्जेक्टिविटी, नेशनल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, जो कि अगेन आर्बिट्ररी है, सब्जेक्टिव है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनके अंडर है। तो जैसे देखिए आर्टिकल 40। हाँ राजेश। देखिए सौम्या, इसमें हमें ये समझना होगा कि हमारे आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में ऑलरेडी ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये इस बाबत, इस अनुसार ये अधिकार देते हैं पुलिस को कि अगर 5 से अधिक बेकाबू भीड़ जुड़ जाए, जैसे हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं, सेक्शन 147 है आईपीसी का, या बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं आईपीसी के भीतर जो ये कहते हैं कि पुलिस से आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा प्रोटेस्ट करने के लिए, और पुलिस करती भी है। लेकिन आप ऐसे समझिए इस बात को कि जब ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे प्रोविजंस हैं, हमारे पास कानून है कि हम किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस को इतना अधिकार है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जजमेंट की जरूरत थी ये बताने के लिए कि आपको डिसेंट है लेकिन आप डेजिग्नेटेड प्लेस में डिसेंट कर सकते हैं। ये एक तरीके से ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा, खास के तब जब हम ऐसे दौर में हैं जहां हम देख रहे हैं कि जन आंदोलनों की क्या स्थिति हो रही है, किस तरीके से यूएपीए जो बटाली जजमेंट है वो एक तरीके से हथियार बन गया है हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए कि वो इसको कंट्रोल कर सके, लोगों के प्रोटेस्ट करने के अधिकार को। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से अगर हम इसे व्यापक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अभी देखा ही है प्रशांत भूषण जी के केस में, किस तरीके से जुडिशरी आपको कहती है कि हाँ, आर्टिकल 19(1) है आपके पास, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो, वो किस हद तक जा सकता है वो हमें भी नहीं पता। कभी भी किसी ने भी उसके एक्सक्लूसिव नहीं है, और एक्सक्लूसिव और सॉरी इनकी इंक्लूसिव नहीं है, बहुत एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और कोई भी टर्म्स डिलिनेट नहीं किए गए हैं। राजेश, आप कुछ बोल रहे थे। सौम्या, मैं ये बता रहा था कि और देखिए कि जैसे गौतम भाटिया जो लीगल एकेडमिक हैं और वकील भी हैं, उन्होंने कैसे कहा है, उन्होंने एक टर्म भी मुझे लगता है जस्टिस रंजन गोगोई के समय अवधि जो उनका कार्यकाल था जब वो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद उन्होंने इस बात पे जोर भी दिया कि कैसे एक कमिटेड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को हम देख रहे हैं। तो ये वो दौर है जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है, वहां से अभी हमें नाउम्मीदी मिल रही है। तो ये जब एक ऐसे दौर में हम देख रहे हैं, तो एक तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ये उनकी विजय की बात भी है, जो स्टेट है, जो रिस्पोंडेंट है इस केस में, उसकी एक तरीके से विजय कर दी गई है। हालांकि आप जजमेंट जब पढ़ेंगे तो भूमिका बहुत अच्छी है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लाभी बात की गई है डिसेंट के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर। ये यहाँ तक भी कहा गया है कि डिसेंट और डेमोक्रेसी साथ साथ चलते हैं, अच्छा। लेकिन लगता नहीं है कि साथ साथ चलने की बात कही है यहाँ पे। तो वही है कि जो मानव कौल कहते हैं कि कुछ दूर साथ चल के कोई पीछे छोड़ दिया है, तो कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो पूरी इस जजमेंट को हम अगर समराइज करें एक 5 मिनट के एक दौर में, तो हमें एक चीज को और समझना चाहिए कि आप देखिए जिन जिन शहरों में डेजिग्नेटेड प्लेस का कॉन्सेप्ट आया है, आप जयपुर को देखिए, आप लखनऊ में देखिए, इवन बिहार में भी देखिए, आप पटना में फुलवारी शरीफ एक समय था जहाँ पे काफी प्रोटेस्ट हुआ करता था, बेली रोड के जो आसपास का इलाका है उधर जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है। लेकिन जब वह उसको शिफ्ट कर दिया गया फुलवारी शरीफ की तरफ, जो कि मेन शहर से बहुत दूर है, तो फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि क्या शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों की नजर नहीं गई। तो इस पे एक एक देखिए, एक हम सब जानते हैं ना कि कैसे लोहिया पार्क है, या कैसे जंतर मंतर है, या कैसे रामलीला मैदान है, ये सारे जगह जो हैं जन आंदोलनों के केंद्र हैं। आप ये समझिए कि कल को ये पुलिस ये कर दे या सरकार ये कह दे कि आप यहाँ से जा करके ओखला में जाइए, या आप दिल्ली नोएडा के किसी
दिल्ली के बाहर किसी जगह पे जाइए, तो आप समझिए कि लोगों का ध्यान नहीं जाएगा इस पे, प्रेस नहीं पहुंच पाएगी। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पे हम एम्बेडेड जर्नलिज्म, जिसको रवीश बहुत प्रचारित कर कहते हैं, गोदी मीडिया। और जैसे यूएस में एम्बेडेड जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट करके आया कि जो है जर्नलिस्ट जो है अपना काम ना करके सत्ता के लिए काम करते हैं। हम भारत में इस चीज को बहुत बखूबी देख रहे हैं, और इस पे पूरी विस्तार से बात की जा सकती है कि किस तरीके से जर्नलिज्म का स्तर गिरा है। लेकिन हम ऐसे दौर में हैं जिसको समझिए कि इस जजमेंट का कितना व्यापक असर हो सकता है, कि अगर जो पुलिस ये कह दे कि आप बाहर जाइए, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और फिर जो है, जो पूरा उद्देश्य होता है प्रोटेस्ट का, आप देखिए गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने ये कहा था कि सत्याग्रह हम किस लिए करते हैं, सत्याग्रह और प्रोटेस्ट का जो आइडिया है वो हम इसलिए करते हैं ताकि जो सत्ता है उसे ये बताया जा सके कि ये हमारी बात है और ये एक सच है जिसके लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट जो है वो एक पिटीशन है। जैसे हम कोर्ट में पिटीशन करते हैं कि आपको हमें इस रिलीफ चाहिए इस चीज से, तो प्रोटेस्ट के जरिए हम सरकार से पिटीशन करते हैं, अपनी ही चुनी हुई सरकार से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि ये हमारी मांगे हैं, ये हमारी चीज है जिसको आपको मानना है। और उसके बीच आप समझिए कि नेगोशिएशंस होता है, हम टेबल पे जाते हैं। आप देखिए किसान आंदोलन हमारे समक्ष हुआ, उसके क्या परिणाम हुए। अभी टेबल पे गए किसान के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि, और डिस्कस किया, भले उसका परिणाम फ्रूटफुल नहीं रहा हो, मत के अनुसार नहीं रहा हो किसानों का, लेकिन उसका एक एक नतीजा तो हुआ कि उस प्रोटेस्ट के कारण सरकार और प्रतिनिधि एक साथ आए और बात की। तो देखिए विमर्श जो है, डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स जो है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको फ्री करने के लिए, उसको व्यापक करने के लिए हमें डेजिग्नेटेड प्लेस के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठकर, जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो एक जो है कवच के रूप में आपको रखना है कि जो सिर्फ कहीं सीमित नहीं रहे, वो हर जगह व्यापक रहे। तो इस रूप से इस जजमेंट को मैं देखता हूँ। जी सौम्या। सही कहा राजेश आपने कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स बहुत जरूरी है, और लोगों को बहुत मतलब, एक तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 19 क्लॉज 2 एंड 3 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात हद तक जाएंगे हमें नहीं पता, एंड किस हद तक हमारे राइट्स को एग्जीक्यूटिव, हम तो ये जानते हैं कि जो डिसेंट है, अब डिसेंट हमारी राइट नहीं रह गई है। अब डिसेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों की विंस एंड फैंसीज पे डिपेंड करता है, बहुत ही वो अच्छे डायरेक्टिव रह शब्दों गया में। है। इसको अगर हम कहें तो वो अधिकार न रह के निर्देश हो गया है। राइट के जगह पे डायरेक्टिव हो गया है कि आप यहाँ जाइए, यहीं प्रोटेस्ट कीजिए। और ये हमें, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इंडियन पैनल कोड में पुलिस के पास, राज्य के पास ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार हैं। जैसा कि अनलॉफुल असेंबली की बात हमने करी, परमिशन लेने वाली बात जो हमने करी, अगर 144 है उस केस में क्या होगा, उसकी बात हमने करी। तो जब इतने सारे अधिकार राज्यों के पास ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता या हमें नहीं लगता कि जो है इस चीज की हमें जरूरत थी। जी सौम्य। बिल्कुल, और जैसा आपने पहले ही बोला है कि जब सब कुछ सेटल हो चुका था तो ये जजमेंट देने की जरूरत क्या थी। आप देखिए क्या होता है जब कश्मीर से इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनकी याचिका होती है उनकी मां की रिहाई के लिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो कोर्ट महबूबा कहती है कि मुफ्ती। इसमें तो अब जजमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो रिटीन प्रेक्टिस हो गया है हैबियस कॉर्पस का, क्योंकि ऑलरेडी वो रिहा हो गई 2 दिन पहले। कोर्ट यहाँ पे वही काम कर सकती थी कि जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया था कोरोना की वजह से, और कोर्ट देखिए मानती है कि कोरोना एक ब्लेसिंग के तौर पे आया इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। अगर आपने पढ़ा हो जजमेंट तो उसमें देखिए कोर्ट कहती है कि कोरोना के चलते, है ना, नेचर्स का इनविजिबल हैंड आता है, ये कोर्ट कहती है। आप हाँ, देखिए कि नेचर्स का जो इनविजिबल हैंड आता है, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है कोरोना की वजह से ये रुक गया, तो आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ा करके ये कहना चाहिए था कि हम जो है इस पे जजमेंट नहीं देंगे, रीट जो है इनफैक्चुअस हो गई। जिस तरह से आपने महुआ मुफ्ती के जजमेंट में दिया कि महुआ मुफ्ती के केस में दिया हैबेस कॉर्पस पिटीशन में, कि आप जो है अब रिहा हो गई हैं तो इस पे कोई जरूरत नहीं है। जबकि आप देखिए वो भी एक व्यापक मुद्दा है कि आप किसी के लिबर्टी को आप खत्म कटेल नहीं कर सकते अननेसेसरी अनड्यू क्राइम पे। हमारे पास हमने देखा जस्टिस कृष्णा अय्यर, और जैसे एक पूरा दौर चला जब प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिविल लिबर्टी पे काफी बात हुई, जो 80 और 70 के दशक में हमने इंपॉर्टेंट केसेस देखे। जी सौम्य।
बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। हमने आज शाहीन बाग के जजमेंट पे बात किया, और हम अगली बार किसी और विषय पे लेके आएंगे। हमारा मकसद है कि हिंदी अंग्रेजी और एक कन्वर्सेशन की भाषा है, जो प्रचलित भाषा है संवाद की, उसमें हम आपको बताएं कि इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है उसको एकदम सिंपल सरल तरीके से आपकी भाषा में, जैसे हम दोस्तों और अपने लोगों से बात करते हैं, घरों में बात करते हैं, कि क्या जजमेंट है, क्या परिणाम उसके हो सकते हैं, और क्या उसका व्यापक एकेडमिक डिस्कोर्स हो सकता है। तो आप देख रहे थे जजमेंट सिंप्लीफाइड। मैं राजेश रंजन अपनी कलीग सौम्या सिंह के साथ आज पहले एपिसोड में बात कर रहा था शाहीन बाग के जजमेंट पर।